بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب اسپیکر، سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ سب تعریفیں اس رب کے لیے ہیں اور وہ جسے چاہتا ہے عزت عطا فرماتا ہے۔ اسپیکر صاحب، پچھلے 2 ہفتوں سے ایک ہیجانی کیفیت میں یہ قوم مبتلا رہی۔ اجلاس بلایا گیا اور اس کا ایجنڈا جو تھا وہ صرف لیڈر آف دی ہاؤس کا الیکشن تھا۔ ادھر سے اٹھ کر حملہ ہوتا ہے اور اجلاس کی کارروائی چلنے نہیں دی جاتی۔ اس کے بعد ایک اور تاریخ کی اناؤنسمنٹ کی جاتی ہے اور ایڈوکیٹ جنرل پنجاب، جو کہ لیگل اسپوکس مین ہوتا ہے کسی بھی صوبائی حکومت کا، سپریم کورٹ میں وہ بیان دیتا ہے کہ الیکشن جو ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق کیے جائیں گے، اور آپ سپریم کورٹ کے جو سٹیٹمنٹ تھی پنجاب حکومت کی، آپ اس کی پاسداری کرتے ہوئے آتے ہیں اور ایوان کے دروازے معزز ممبران پر بند کر دیے جاتے ہیں۔ ڈپٹی اسپیکر جو ہے اس کے اختیارات واپس لے لیے جاتے ہیں۔ آپ نے تو ایک آئینی فریضہ ادا کرنے کے لیے اجلاس طلب کیا۔ اسپیکر صاحب، یہ تاریخ کبھی کسی کو معاف نہیں کرتی، اور آج پھر ایک دفعہ تیسری مرتبہ یہ ایوان اکٹھا ہوا کہ لیڈر آف دی ہاؤس کا انتخاب ہونا ہے۔ یہ سب میرے معزز ممبران روزہ رکھ کر صبح یہاں پر 9:30 سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب ہم لابی میں بیٹھے ہوئے ہمیں پتہ لگا کہ آپ کو نشانہ بنایا گیا ہے، آپ کے روسٹرم پر آ کر زد و کوب کیا گیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ پر حملہ نہیں ہے، اس ایوان کے تقدس پر حملہ ہے، اور اللہ کا بے پناہ شکر ہے کہ اللہ نے آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھا۔ اسپیکر صاحب، وقت گزر جاتے ہیں لیکن کردار یاد رہ جاتے ہیں۔ میں کسی کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن مجھے آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیں، کیا کسٹوڈین آف دا ہاؤس جس نے حلف لیا ہے اس ایوان کے تقدس کی پاسداری کا، آئین کی پاسداری کا، کیا یہ حلف اتنا کمزور ہے خدا نہ خواستہ کہ جب ان کو اپنی ہار نظر آئے تو وہ اسی معزز ممبران کے اوپر ایوان کے دروازے بند کرا دیں، اسمبلی سیل کرا دیں، آپ پر حملہ کرائیں؟ میں اس معزز ایوان کے اندر جتنے بھی اراکین بیٹھے ہیں ان کے توسط سے، اسپیکر صاحب، آج آپ نے جس طرح سے اپنا فرض بہادری سے ادا کیا، میں
میں اس معزز ایوان کے توسط سے جناب چیئرمین آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں آپ کی بہادری کی. ہر طرح سے آپ کو زچ کیا گیا، آپ کے احکامات کو نہیں مانا گیا، ہائی کورٹ نے بلا کر آپ کے اختیارات واپس دیے، اس کے باوجود آج آئین قانون کا تیسری مرتبہ مذاق کیا گیا. لیکن قوم 15 دن پریشان ہیجانی کیفیت میں گرفتار تھی، لیکن آج سب چیزوں کے باوجود جناب چیئرمین سب چیزوں کے باوجود آج جمہوریت کی فتح ہوئی ہے خدا کے فضل و کرم سے. یہ میری فتح نہیں ہے، یہ ہم سب کی اس ایوان میں بیٹھے ایک ایک رکن کی فتح ہوئی ہے اللہ کے فضل و کرم سے. اسپیکر صاحب، میں اس رب کا شکر ادا کرتا ہوں اور میں اپنے تمام ورکرز، پارٹی اراکین، ہمارے معزز اتحادی پیپلز پارٹی کے پارلیمانی لیڈر حسن مرتضیٰ صاحب، علیم خان صاحب، جہانگیر ترین صاحب، ملک اسد کھوکھر صاحب، راہ حق پارٹی کے معاویہ اعظم صاحب، جگنو محسن صاحبہ، زہرا بطول صاحبہ، عظمیٰ کاردار صاحبہ، محسن عطا کھوسا صاحب، احمد علی اولک صاحب، راجہ صغیر صاحب، فدا حسین وٹو صاحب، میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہمارا ساتھ دیا. گزارش اتنی ہے، آپ بھی اس صوبے کے باسی ہیں. 4 سال پہلے اسپیکر صاحب بطور اپوزیشن لیڈر اسی ایوان کے باہر جب ہم کالی پٹیاں باندھ کر متحدہ اپوزیشن حسن مرتضیٰ صاحب، ہم نے تمام تر دھاندلی زدہ الیکشن کے جمہوریت کی گاڑی کو چلتا رکھنے کے لیے حلف لیا، تو میں نے کہا تھا کہ عمران نیازی صاحب، ہم دھاندلی سے ہمارا الیکشن چرایا گیا، شاید یہ قوم دھاندلی زدہ الیکشن کے زخم بھول جائے اگر آپ نون لیگ نے جتنا پرفارم کیا اس سے آپ 10 اس کا فیصد بھی آپ پرفارم کر لیں. اور ہم نے ساتھ دیا، ہم اس ایوان میں بیٹھے. اسپیکر صاحب، میرے رفقا نے، میرے قائدین نے اس جماعت کے یہاں بیٹھے ہیں، سلمان رفیق صاحب، حافظ میاں نعمان صاحب، شاہد عباسی صاحب، احسن اقبال صاحب، خواجہ سعد رفیق صاحب، یہ علیم خان صاحب، ان سب نے جیلیں کاٹی. جہانگیر ترین صاحب کے خلاف مقدمے بنائے گئے. میں یہاں پر 22 مہینے بطور قیدی پروڈکشن آرڈرز پر اس ایوان میں پیش ہوتا رہا. کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، برا وقت آتا ہے، اللہ کے کرم سے چلا جاتا ہے. لیکن اسپیکر صاحب، میں آج آپ کے توسط سے پوچھنا چاہتا ہوں عمران نیازی صاحب سے کہ آپ نے اس قوم کے نوجوانوں کو 1 کروڑ نوکریوں کا جھانسا دیا. آج لاکھوں نوجوان بے روزگار ہیں.
1 करोड़ नौकरियां तो दूर की बात है, 50 लाख घर का इस गरीब कौम से आपने वादा किया। 50 लाख घर क्या बनने थे? जनाब चेयरमैन, आते ही गरीब का झोंपड़ा, गरीब का ठेला इसलिए गिरा दिया गया कि वो नाजायज तजावुजात हैं। इसी असना में बनी गाला का महल जो नाजायज तजावुजात थे उसको लाखों में रेगुलराइज करा दिया गया और गरीब का ठेला गिरा दिया गया। ये कौन सी रियासत मदीना की बात करते हैं? स्पीकर साहब, 5.8% ग्रोथ रेट थी 2018 में जब मुस्लिम लीग नून ने इक़्तिदार छोड़ा। 3 से 4% इन्फ्लेशन रेट था। और आप जानते हैं कि ये 5.8 जो फीसद ग्रोथ रेट था वो ज़मीन बोस होकर 0 पे आ गया। वही 3-4% जो इन्फ्लेशन रेट था वो 12% पर आ गया। और ये मैं नहीं कह रहा, बरतानिया का जो जरीदा है द इकोनॉमिस्ट, उसने कहा कि पाकिस्तान इज द थर्ड मोस्ट एक्सपेंसिव कंट्री इन द वर्ल्ड। और ये स्पीकर साहब, चीनी का बहरान आता है, इस कौम की माओं बहनों बेटियों को लाइनों में लगना पड़ता है। और न्याजी साहब कहते थे कि ये माफिया है। आटे का ये सूबा जो कि वाफर गंदम पैदा करता था और दूसरे सूबों को भी फराहम करता था, उस सूबे के अंदर ऐसा शदीद बहरान पैदा किया गया कि आटे के लिए इस कौम को लाइनों में लगना पड़ा। कोरोना आता है तो पैनाडोल की दवाई जो है वो नापैद हो जाती है। जब जब भी बहरान आए, इमरान न्याजी साहब ने कहा कि ये माफिया की कारिस्तानी है। ये माफिया कौन है स्पीकर साहब? ये कौन से माफिया हैं जो कि आम दुनिया में 20 से 25% इन्फ्लेशन हुई और हमारी यहाँ पर बैड गवर्नेंस की वजह से, लैक ऑफ मॉनिटरिंग की वजह से 60 से 70% जो है महंगाई आई। बिजली 61% इन लोगों ने महंगी की। गैस 167% महंगी हुई। और जो बिजली था वो 8 रुपए का यूनिट जो है वो आज 27 रुपए का हो गया है। हद ये है स्पीकर साहब, परसों ये बात वाज़े हुई कि सिर्फ लैक ऑफ रिपेयर एंड मेंटेनेंस के वजह से 7,000 मेगावाट बिजली जो है वो ग्रिड में नहीं आ रही, वो प्लांट्स बंद पड़े। मैं स्पीकर साहब सिर्फ जानना ये चाहता हूं कि IMF के पास नहीं जाना था, खुदकुशी करनी थी। 6 महीने इंतज़ार कराया गया, जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं। इसी इसरा में 3 वज़ीर ख़जाना तब्दील हो गए और इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस क्रैश हो गया। स्टॉक मार्केट्स, कैपिटल मार्केट्स, उनका कॉन्फिडेंस क्रैश हो गया। और फिर हमने 38 से 40% को रुपए की कदर कम कर दी और फिर IMF के घुटनों में जाकर बैठ गए। कर्जे लिए जाते हैं लेकिन टाइमिंग इंपॉर्टेंट होती है। इस मुल्क के साथ तजुर्बे किए गए, खिलवाड़ किया गया। इंतशार स्पीकर साहब, आज आपने खुद देख लिया कि इस कुर्सी के साथ क्या सलूक किया गया। ये बैठे हैं मेरे सारे साथी, किन गालियों से, गलीज़ गालियों से इनको नवाजा गया। यहाँ पर हमारी ख़वातीन बैठी, किस तरह से इन पर हमला करवाया गया। टॉक शोज पर बदतमीजी, बद अखलाकी का सबक दिया जाता है। जो सबसे ज़्यादा गलीज़ गालियाँ देता है उसको शाबाशी दी जाती है कि तुम मेरे टाइगर हो। क्या इस तरह से पाकिस्तान चलेगा?
پھر ہر چیز پر جھوٹ بولا جاتا ہے, ہر ایک کو غدار کہا جاتا ہے, بھرے جلسوں میں اس ملک کے دوستوں کو للکارا جاتا ہے, کبھی ایبسولوٹلی ناٹ کہا جاتا ہے, کبھی یورپین یونین کو دھمکایا جاتا ہے. جناب چیئرمین, یہ گلوبل ولیج ہے دنیا. ہمارا یورپین یونین کے ساتھ تجارتی تعلقات ہیں. چائنا کے منصوبوں کو کہا گیا آتے ہی کہ کرپشن زدہ ہیں. وہ دوست جو ہم ہمیشہ آل ویدر فرینڈ ہے, اس کو ناراض کیا گیا, چائنا ناراض ہوا. تو یہ فورن پالیسی میں بھی اناڑے آ گئی. اور جب میں آپ کے سامنے یہ فگرز پیش کر رہا ہوں مہنگائی کے, تو وزیر اعظم سابق نے کہا کہ مجھے قوم نے آلو اور پیاز کے ریٹ کے لیے الیکٹ نہیں کیا. تو کیا آپ کو یہاں پر کوئی بادشاہت کے لیے الیکٹ کیا گیا تھا؟ اسپیکر صاحب, میں آج پاکستان کی عوام کو اور بالخصوص پنجاب کی عوام سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آج میں ان دوستوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے آج اللہ کی مہربانی کے بعد قائد ایوان سے کے طور پہ الیکٹ کیا. وہیں پر میں اپنے قائد محمد نواز شریف کا شکر گزار ہوں اور میں صدر جماعت محمد شہباز شریف کا شکر گزار ہوں, اپنی جماعت کا مشکور ہوں جس نے ایک کارکن پر اعتماد کا اظہار کیا. اور میں آج پنجاب کی عوام کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ حمزہ شہباز آج بھی ایک کارکن ہے. میرا سیاسی سفر جناب چیئرمین 1993 میں شروع ہوا, جب پہلی مرتبہ مجھے جیل بھیجا گیا. میں اس وقت گورنمنٹ کالج کا اسٹوڈنٹ تھا اور 6 مہینے میں نے جیل کاٹی. میں گریجویشن کر رہا تھا, 1 سال ضائع ہوا. لوگوں کی بیل ہوتی ہے, لوگوں کے اپنا جو ہے وہ کیس جو ہے وہ بریت ہوتی ہے. میری کواشمنٹ ہوئی اس بنا پر کہ یہ تو اس کی عمر نہیں تھی جیل جانے کی, اس کی عمر نہیں تھی مقدمے بھگتنے کی, تو اس کو آپ نے جیل مالا. تو میرا کیس کواش ہوا تھا کہ یہ انڈر ایج ہے. اسپیکر صاحب, اس کے بعد مشرف کا دور آیا. 10 سال نہ میرا بھائی تھا, نہ میرا والد تھا, نہ کوئی مشورہ دینے والا تھا. 10 سال میں نے یہاں پر ایک یرغمالی کے طور پر گزارا اور اسی اثناء میں میرے دادا وفات پا گئے, ان کی میت آئی. انہی کاندھوں پر ایک واحد فیملی ممبر تھا جس نے اپنے دادا کو لحد میں اتارا. کوئی دوسرا نہ بھائی تھا نہ باپ تھا کہ اس وقت میرے ساتھ میرے دادا کو لحد میں اتارتا. میرے والد کو کینسر کا موذی مرض لاحق ہوا. امریکہ میں وہ آپریشن تھیٹر میں جا رہے تھے تو انہوں نے مجھے خط لکھا کہ حمزہ شہباز, میں تمہارا بڑا انتظار کرتا رہا, اگر میں زندہ نہ لوٹا تو تمہیں اپنے بہن بھائیوں کا باپ بننا ہے. آج بھی وہ خط روز میں پڑھتا ہوں, اپنی صبح کا آغاز کرتا ہوں. تو اسپیکر صاحب, وقت آتے ہیں, اللہ کی مہربانی سے گزر جاتے ہیں. پھر 22 مہینے جیل کاٹی, 10 سال میں ممبر نیشنل اسمبلی رہا, 4 سال اب اللہ کے فضل و کرم سے اپنی پارٹی کی اور اللہ کی مدد سے اپوزیشن لیڈر رہا. تو 29 سال کا یہ ایک طویل سفر ہے, اور آج 29 سال کے طویل سفر
की मुसाफत तय करने के बाद मैं अपने दोस्तों को, अपनी पंजाब की आवाम को बताना चाहता हूं कि मुझे कायदे ऐवान कहलाने से ज़्यादा एक वर्कर कहलाने पे आज भी नाज है। स्पीकर साहब, स्पीकर साहब, इस सूबे में जो कि तरक्की कर रहा था, मेरिट के असूलों की बुनियाद पर अफसरान का पोस्टिंग ट्रांसफर होती थी, वज़ीर आला खुद जो है वो डीसी और एसी की इंटरव्यूज कंडक्ट करते थे, रिपोर्टें मुरतब होती थी, कहीं पर कई वाकया हुआ था, शहबाज शरीफ खुद पहुंचते थे। आज स्पीकर साहब, सानिया साहिवाल हुआ, मैं उस बच्ची के घर गया, मेरी भी एक बच्ची है, अल्लाह ताला सबके बच्चों को सलामत रखे। स्पीकर साहब, मुझे आज भी उस बच्ची के आंसू नहीं भूलते। उसने कहा, अंकल हमज़ा, मैंने उनको कहा कि मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मेरे बाबा को गोली मत मारो, मैं अपने बाबा को यहाँ से ले जाती हूँ, मेरी मामा को गोली मत मारो। हमज़ा अंकल, उन्होंने मेरे सामने मेरे बाबा को गोली मार दिया। उस बच्ची की जो आंखों में जो बेबसी थी स्पीकर साहब, आज तक जब उसको मैं याद करता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये मोटरवे का वाकया हुआ, खातून का रेप हो गया और वो जो सीसीपीओ था उसने कहा कि ये खातून का कसूर है, ये इतनी रात को क्यों निकली, और वफाकी वज़रा की टीम आ गई कि जी ये तो बड़ा अजीम सीसीपीओ है जिसकी अपना जो है वो करतूतें हैं, वो अब आज मैं गिनवाना शुरू करूं तो बहुत देर हो जाएगी। कुछ नहीं हुआ। सेफ सिटी, जहां पर आज हम शहर लाहौर में बसते हैं स्पीकर साहब, दिन दिहाड़े डाके पड़ते हैं, रेप होते हैं। 18 अरब का मंसूबा जो कि पिछली हुकूमत में शहबाज शरीफ साहब ने लगाया, उसके 30% कैमरे बंद पड़े हैं, आज भी बंद पड़े। लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से मैं आपसे क्या बताऊं, शर्म आती है कि निचली सतह की ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए ब्यूरोक्रेट्स हों या कोई और सरकारी अफसर हो, रेट ऐवान वज़ीर आला में तय होते, कैश पर अपना जो है वो सारी बातचीत होती है और ट्रांसफर पोस्टिंग होती हैं। ये पढ़ते हैं सारे लोग, ये गैलरी में बैठे मेरे जो अपना बुजुर्ग मेरे बहन भाई बैठे हैं, रोज अखबार में होता है जी इतने दर्जन लोग जो हैं वो ट्रांसफर हो गए, 5 आईजी बदल दिए गए, 6 चीफ सेक्रेटरीज बदल दिए गए, और आज सूबे की हालत देखकर तकलीफ होती है। यानी आप कोई बड़ा मंसूबा नहीं बना सके, भाई कूड़ा ही उठा लेते, जो कि बड़े शानदार तरीके से टर्की के साथ मिलकर हमने अपना जो है एग्रीमेंट किया, उसी को आगे चला लेते। उसको मशीनों को कब्जे में ले लिया, तुर्क जो हमारे भाई हैं उनको नाराज किया, और आज इस लाहौर शहर की सफाई का कोई पुरसाने हाल नहीं। स्पीकर साहब, वैसे तो आपके साउथ में तैयब अर्दवान हॉस्पिटल बना है, स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल है, खुदा का शुक्र है। बहावलपुर में शानदार कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट बना है, यहाँ पर KPLI जो किडनी एंड लिवर ट्रांसप्लांट इंस्टीट्यूट है। यहाँ के गरीब लोग जो अपने प्यारों के लिवर ट्रांसप्लांट के लिए, किडनी ट्रांसप्लांट के लिए एम्बेसियों में धक्के खाते थे, अपने घर बेचकर पैसे इकट्ठे करके बाहर जाते थे। हमने बाहर से डॉक्टर्स को बुलाया, और चेयरमैन साहब वो डॉक्टर्स हैं जिनके अपने जहाज थे, वो वहां पर काम कर रहे थे, सिर्फ इस मुल्क की प्यार की खातिर वो सब कुछ छोड़कर यहां पे आए। उस मंसूबे को ठप कर दिया गया क्योंकि ये शहबाज शरीफ का मंसूबा था। मुझे आप बताएं स्पीकर साहब कि क्या
शहबाज शरीफ का मंसूबा होने की वजह से इस गरीब आवाम को तकलीफ दी गई, इसको इलाज और मुआवजे से महरूम किया गया। जहां पर कामयाब किडनी ट्रांसप्लांट शुरू हो चुके थे, कैंसर की दवाइयां अस्पतालों में आम दवाइयां मुफ्त मिला करती थी, अब हेल्थ कार्ड भी होता है गरीब आदमी के पास। डॉक्टर कहता है जाओ पहले अपनी जेब से दवाइयां लेके आओ, फिर हम तुम्हारा इलाज करेंगे। ये कोई इमरान नियाजी की राम कहानी नहीं मैं आपको सुना रहा चेयरमैन साहब, ये हकाइक हैं, ये तल्ख हकाइक हैं। ये खिलवाड़ इस सूबे के साथ हुआ है। और मैं यहां पे बताता चलूं कि मैं कोई बड़े बड़े दावे करने नहीं आया, मैं अपने साथ कोई खिलाड़ी का नाम लगाकर प्लस करने नहीं आया। मैं खुदा के फजल करम से नवाज शरीफ का कारकुन हूं, शहबाज शरीफ का बेटा हूं, दिन रात एक करूंगा, इस आवाम की खिदमत करूंगा इंशाअल्लाह ताला। मैं अपने मुअज़्ज़िज़ इत्तेहादियों को ये भी कहना चाहूँगा कि ये बड़ा नादिर मौका है, मेरी एक नाकिस राय है, मैं एक सियासी कारकुन हूँ। मैं समझता हूँ कि 74 साल की तारीख़ में ऐसे हालात नहीं हुए चेयरमैन साहब। मैं लोगों के घरों में जाता हूँ, बंद गलियों में लोगों का हाल पूछने जाता हूँ। आज स्पीकर साहब घरों में फाके हैं, आज रात को बच्चे दूध ना होने की वजह से रोते हैं, माँ बाप के पास झूठी तसल्लियाँ देने के अलावा बच्चों को देने के लिए कुछ नहीं है। यहाँ से आप भी माल रोड से गुजरते हैं, मुख्तलिफ रोड से गुजरते हैं, दिहाड़ीदार सुबह बैठते हैं चलाती धूप में, रात को जब घर जाते हैं बच्चे भूखे कपड़े नोचते हैं कि अबू खाना कहाँ है। तो उस गरीब आदमी के आंसू टपकते हैं, उसके कलेजे में छुरियां चलती हैं जब अपने भूखे बच्चों को कुछ नहीं दे सकता। आप भी किसी के बेटे हैं, जब किसी की माँ दर्द से कहराती है, बेटे का दिल करता है कि अपना दिल चीर कर अपनी माँ के कदमों में रख दे, लेकिन उसके पास दवा खरीदने के पैसे नहीं है। स्पीकर साहब आज इस सूबे में घरों में ये हालात व वाक़यात हो रहे हैं। ये ऐसी नौबत क्यों आई? मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ स्पीकर साहब, मैं आपके तवस्सुत से इस ऐवान को बताना चाहता हूँ, अल्लाह इज़्ज़त देने वाला है, रिज़्क़ देने वाला है, ज़िंदगी मौत के फ़ैसले वो रब करता है। लेकिन मैंने अल्लाह से दुआ हमेशा ये मांगी कि अल्लाह मियाँ मुझे अपनी मखलूक की खिदमत का मौका देना, किस तरह देना है वो तेरी मर्जी है। क्योंकि अल्लाह मियाँ मैं समझता हूँ कि जो इंसान तेरी मखलूक की खिदमत करता है, अगर एक गवाही भी क़यामत वाले दिन सच्ची पड़ गई तो अल्लाह कहेगा कि इसको बख्श दो, क्योंकि ये मेरी दुखी मखलूक के काम आता था। अगर सियासत में खिदमत के ज़रिए अल्लाह राज़ी हो जाए, दुनिया में मिलेगी और आखिरत में मिलेगी। ये सियासत की मैं अल्लाह से दुआ करता था। मैंने कभी कायदे ऐवान बनने के लिए दुआ नहीं की। मैं उस रब का शुक्र अदा करता हूँ, जहाँ पर मैं आज शुक्र अदा करता हूँ, उधर उसी सांस एहसास ज़िम्मेदारी बहुत ज़्यादा शिद्दत से महसूस करता हूँ। आज जिस दौराहे पे ये मुल्क खड़ा है, जिस मुश्किल में ये आवाम है, महंगाई ने गरीब आदमी का भुरकस निकाल दिया है, बेरोजगारी ने घरों में डेरे डाले हुए हैं। मैं अपने इत्तेहादियों का शुक्रगुजार हूं और मैं ये समझता हूं कि आज पाकिस्तान में हर तरफ इंतशार है, कौमी असेंबली में गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटे जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच कहता है कि इलेक्शन कराओ, रात के 12 बजे तक असेंबली का दुनिया में मजाक बनाया जाता है और फिर एक नोटिफिकेशन के जरिए कहा जाता है कि देखें ये मुल्क के खिलाफ साजिश हुई है।
मैं आपको बताऊं चेयरमैन साहब, इस सूबे में एक नाअहल शख्स को वज़ीरा लगाकर इस सूबे के खिलाफ साजिश हुई है। इस सूबे के साथ खिलवाड़ किया गया है। लोकल बॉडीज जो कि रीढ़ की हड्डी हुआ करता है चेयरमैन साहब, बरतानिया में जहां जहां जमहूरियत तरक्की करती है वहां पर लोकल बॉडीज मजबूत तरीन इदारा है। इससे कुछ और तो नहीं बन पड़ा। 58,000 इलेक्टेड मेंबर्स को स्पीकर साहब एक जुम्बिश कलम के जरिए इन्होंने चलता किया। फिर सुप्रीम कोर्ट ने उनको बहाल किया। कोरोना जैसी वबा आई, क्या करिया करिया गांव गांव जो हमारी लोकल बॉडीज के यूनियन काउंसिल वार्ड्स, हम बेहतरीन कारकर्दगी कर सकते थे, लेकिन उसको खत्म कर दिया गया। तो मैं इंशाअल्लाह, मुझे हर के पास चल के जाना पड़ा, मैं जाऊंगा। और मेरी अल्लाह से दुआ है कि अगर इस मुल्क ने आगे चलना है चेयरमैन साहब, तो बेहतरीन बल्दियाती निज़ाम को सूबे में मुतारिफ कराना होगा। और इसके लिए मैं सबके साथ बैठूंगा और इंशाअल्लाह ताला एक अच्छा मरबूत बल्दियाती निज़ाम लेके आएंगे। मैं ये भी कहता चलूं कि मुझे आज खुशी नहीं है कि इस ऐवान की कारकर्दगी जो है, हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को यहां पे आना पड़ा। जब डिप्टी स्पीकर का गला दबाया जाएगा, उसको अपना जो है नोचा जाएगा, उसको गिराया जाएगा, वो अपनी जान बचाने के लिए बाहर चला जाएगा, तो फिर आइन और कानून की पासदारी के लिए किसी को आगे आना पड़ेगा। तो आज जो पुलिस ने किरदार अदा किया है, मैं उनको भी शाबाश देता हूं। स्पीकर साहब, मैं एक पाकिस्तानी हूं, बाद में मैं लीडर ऑफ द हाउस हूं। मैं आज इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान से, आपके तवस्सुत से पंजाब की आवाम को ये बताना चाहता हूं, बहुत इंतकाम हो गया, बहुत बद अखलाकी हो गई, बहुत एक दूसरे के गिरबान हमने पकड़ लिए। आज जो कुछ ऐवान में हुआ, ये इस कौम का मसला नहीं है। कौम अमन चाहती है, कौम के बच्चे भूखे हैं, रात को लोग अपनी मां की दवाई नहीं ला सकते, उनको रात को नींद नहीं आती कि मां बीमार है, बाप का सीना छलनी है कि उसके बच्चे तालीम हासिल नहीं कर सकते। बिजली के बिल आते हैं तो घरों में क़यामत ढाते हैं। गैस के बिल, गैस तो वैसे ही आती नहीं है, बिल आते हैं, लोग ज़हनी मरीज बन चुके हैं। तो मैं आपके तवस्सुत से इस ऐवान को गवाह बनाकर एक कारकुन के नाते ये कहना चाहता हूं कि इंतकाम का सफ़ा आज से हमने फाड़ दिया है। हम किसी से इंतकाम नहीं लेंगे। हम इस सूबे की खिदमत के लिए, आम अवाम के भलाई के लिए अपनी कमर कसकर मैदान अमल में निकलेंगे। और अल्लाह की मदद से अगर अवाम का भला हो जाए, इस सूबे का भला हो जाए, तो मेरा ख्याल है कि यही बेहतरीन इंतकाम हुआ करता है जमहूरियत के अंदर। लेकिन स्पीकर साहब, आपने भी चले जाना है, मैंने भी यहां पर कायदे अवान बनकर सारी जिंदगी यहां नहीं बैठे रहना। लेकिन आज मैं अपने साथियों को कह रहा था, अपने इत्तेहादियों को, अपने मुअज़्ज़ज़ अरकान को कह रहा था, मैंने कहा आज 3 दफ़ा ये जो इलेक्शन के लिए ऐवान में इजलास मुनक्किद हुआ, जिस तरह इस ऐवान को ताले लगाए गए, ये ऐवान की तदीन और आराइश हुई है, नया ऐवान बना है। भाई ऐसे शानदार ऐवान का क्या फ़ायदा कि उसी शानदार ऐवान में आज आइन और कानून का कत्ल हुआ है। मैं आपके तवस्सुत से, हमारे इत्तेहादी बैठे हैं, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह को मंजूर हुआ तो हम नया स्पीकर इलेक्ट करेंगे इंशाअल्लाह ताला, और इस ऐवान की मदद से
जो इस कुर्सी का आपके साथ जो हुआ, हमें ऐवान की इन हाउस कमेटी बनानी चाहिए और जो भी इसमें इन्वॉल्व है इस साजिश में, ये साजिश आपके खिलाफ नहीं है, ये साजिश हमजा शहबाज के खिलाफ नहीं है, ये साजिश जमहूरियत के खिलाफ साजिश है, ये आइन के खिलाफ साजिश है। इसकी भरपूर इंक्वायरी होनी चाहिए और इस ऐवान को चाहिए कि उन लोगों को कैफरे किरदार तक पहुंचाए ताकि दोबारा ऐसा तमाशा इस सूबे में बपा ना हो सके। स्पीकर साहब, अवाम के मसाला हैं और एहसास ज़िम्मेदारी है। मेरे मुअज़्ज़िज़ अरकान बैठे हैं, मेरे इत्तेहादी बैठे हैं। मैं चाहूँगा कि मैं आज सिर्फ ये बताऊँ कि हमारी हुकूमत इंशाअल्लाह अवाम की हुकूमत होगी। मैं ख़ुद एक सियासी कारकुन हूँ, अवाम में रहता हूँ, इसलिए अवाम को और हमारे हुकूमत के दरमियान जो गैप है उसको हम ख़त्म करेंगे, अवाम के अंदर घुल मिल जाएंगे और ये एहसास ही यहाँ पे तो सानिया साहिवाल हो जाता है, दिन दिहाड़े कीमतें बढ़ा दी जाती हैं, डाके पड़ते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। तो इंशाअल्लाह आज के बाद अल्लाह ने चाहा तो इस सूबे को पता लगेगा कि अल्लाह के बाद यहाँ पर इस सूबे का कोई वाली वारिस है इंशाअल्लाह ताला। तरक्की का जो सफ़र हमने 2018 में जो टूटा था वहीं से हम शुरू करेंगे इंशाअल्लाह और अपना जो है वो राइट मैन फॉर द राइट जॉब, स्पीकर साहब, पुलिस अफसर होगा इंशाअल्लाह, अच्छे पुलिस अफसरों का इंतखाब करेंगे ताकि इस सूबे में अमन आए, अच्छे ब्यूरोक्रेट्स लेके आएंगे ताकि वो परफॉर्म करें। मैं सबको साथ लेके चलूंगा, लेकिन इंशाअल्लाह ताला मैं कोई फरिश्ता नहीं हूं। मेरे खिलाफ, मेरी फैमिली के खिलाफ करप्शन के कई केसेस बने, यहां पर बैठे कायदीन के खिलाफ करप्शन के केसेस बने। निकला क्या 4 सालों में? नेशनल क्राइम एजेंसी यूके ने कहा कि हमने 22 महीने बेलाग तहकीकात की शहबाज शरीफ के खिलाफ, कुछ नहीं निकला, कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं निकली, नवाज शरीफ के खिलाफ कोई करप्शन साबित नहीं हो सकी। लेकिन स्पीकर साहब, अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज है। आज जो आपके साथ हुआ इसका हिसाब इस दुनिया में भी होगा, आखिरत में भी होगा। लेकिन मुझे कहने दीजिए, ये मुकाफात अमल है, अल्लाह की लाठी घूमती है, वक्त का पहिया घूमता है। आज वही लोग जो चोर डाकू का नारा लगाते थकते नहीं थे, आज सिर्फ तोशा खाने का हिसाब मांगा है इस कौम ने और 14 करोड़ का हिसाब नहीं दिया जा रहा। और जवाब क्या मिलता है? सिफारती ताल्लुकात खराब हो जाएंगे। ओ भाई, आप अपना सुपर पावर को कहते हैं एब्सोल्युटली नॉट, यूरोपियन यूनियन को आप ललकारते हैं, आप कहते हैं जी अमेरिका ने साजिश की है, और जब अपनी तलाशी की बारी आती है तो आप कहते हैं जी कि सफारती ताल्लुकात खराब हो जाएंगे। अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है 7 साल से ये मौसूफ कहते थे ये स्टे ऑर्डर के पीछे छुपते हैं। और भाई 4 साल हमने तलाशी दी, आपके अपने साथियों ने तलाशी दी, जहांगीर तरीन ने, अलीम खान ने तलाशी दी। अब फॉरेन फंडिंग केस में आप रंगे हाथों पकड़े गए हैं। आपने टी बॉयज के नाम पैसे मंगवाए, आपने एफबीआर में अपना टैक्स रिकॉर्ड छुपाया, आपने स्टेटमेंट में अपने अकाउंट छुपाए अपने दस्तखतशुदा कागज के जरिए। तो इंशाल्लाह 1 महीने में फैसला आएगा। मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूं, मैं कहता था कि कौम जब ये जाएंगे तो ऐसे ऐसे करप्शन की दास्तानें आएंगी, कौम अपनी उंगलियां मुंह में दबाकर हैरान होगी कि ये क्या कारस्तानियां उन्होंने की हैं। तो स्पीकर साहब, हम इंतकाम नहीं लेंगे, कानून अपना रास्ता बनाएगा और इंशाअल्लाह ताला जिसने भी इस कौम का पैसा लूटा है, जिसने भी इस कौम से हकाइक छुपाए हैं, उसको जवाब देना पड़ेगा। और अवामी अदालत सबसे बड़ी अदालत है, उसमें जवाब देना पड़ेगा इंशाअल्लाह। दूसरा स्पीकर साहब, ये प्राइस कंट्रोल कमेटियों को हम इंशाअल्लाह फ़ाल करेंगे। इसने
अपना जो है ना गरीब आदमी जब सुबह उठता है ना तो उसकी बीवी उसके पास जो है ना वो ले आती है कि जी ये अपना जो है ना ये मेरा ख़र्चा है, और उसको अपना जो है ना समझ नहीं आती कि मैं बच्चों का खर्च पूरा करूं, उनकी तालीम के पैसे अदा करूं, बिजली का बिल अदा करूं या घर का खर्चा चलाऊं। तो इंशाअल्लाह हम बेहतरीन लोगों को प्राइस कंट्रोल कमेटियों में शामिल करेंगे। ये मोअज़्ज़ज़ अरकान सूबाई असम्बली हर ज़िले में शहर में जाएंगे, मैं भी जाऊंगा, और इंशाअल्लाह अगर हम आवाम को ये एहसास दिला दें कि उनकी महंगाई के दुख में हम बराबर के शरीक हैं, आवाम भी राज़ी होगी और अल्लाह भी राज़ी होगा इंशाअल्लाह ताला। दूसरा, फूड अथॉरिटी, बिल्कुल मिलावट शुदा माल मिलता है। हमने स्टेट ऑफ द आर्ट फूड अथॉरिटी बनाई, लेकिन कोई उसका पुरसाने हाल नहीं है। और आज कायदे-ए-ईवान हमजा शहबाज मुंतखब होने के बाद असम्बली में खिताब कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि डिप्टी स्पीकर ने बहादुरी से अपना फ़र्ज सर अंजाम दिया। हमजा शहबाज आज भी कारकुन हैं, अवाम की खिदमत में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। आज जमहूरियत की फतह हुई है। नौ मुंतखब कायदे-ए-ईवान हमजा शहबाज पंजाब असम्बली में खिताब कर रहे हैं। उन्होंने पार्टी क़यादत, इत्तेहादियों और तमाम कारकुनों का, सियासी वर्कर्स का शुक्रिया अदा किया। कहते हैं मुअज़्ज़ज़ अपना जो है तवस्सुत से पंजाब की आवाम को कहना चाहता हूँ कि हम वन डिश को वापस लेके आएंगे इंशाअल्लाह, गरीब के भरम को हम कायम करेंगे। स्पीकर साहब, मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि डायलिसिस जिसको अपना जो है वो आम आदमी के लिए हमने बड़ा सस्ता बनाया था, आज डायलिसिस मशीनें जो हैं अस्पतालों में ख़राब पड़ी हैं, सिटी स्कैन मशीन्स ख़राब पड़ी हैं। इंशाअल्लाह ताला ये किडनी के जो लोग अपना जो डायलिसिस आजकल नहीं करा रहे, उसको इंशाअल्लाह ताला हमारी तरजीह होगी कि हर ज़िले में, हर शहर में, जहाँ जहाँ पर भी अस्पतालों में डायलिसिस मशीन है, उनको हम फिलफौर ठीक कराएं ताकि डायलिसिस के पेशेंट जो हैं उनका इलाज हो सके इंशाअल्लाह ताला। मैं ये भी स्पीकर साहब कहता चलूं कि सूबा पंजाब सारा पाकिस्तान नहीं है। पाकिस्तान जो है उसका एक बड़ा सूबा है, और नवाज शरीफ के दौर में NFC अवार्ड हुआ था जिसमें पंजाब ने अपना पेट काट कर सूबा बलूचिस्तान को ज़्यादा फंड्स फराहम किए थे। मैं बतौर कायदे-ए-ईवान पंजाब असम्बली अपने दूसरे सूबों को ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला पंजाब आपका बड़ा भाई है, सिर्फ बातों की हद तक नहीं। इंशाअल्लाह पंजाब अपने छोटे सूबों की तरक्की के लिए उनका साथ खड़ा भी होगा। कोई कुर्बानी भी देनी पड़ी कुर्बानी देंगे, ताकि बड़ा सूबा कुर्बानी देगा तो मजबूत पाकिस्तान बनेगा इंशाअल्लाह ताला। तो स्पीकर साहब, ये आज जो असम्बली में आइन और कानून की धज्जियाँ उड़ाई गईं, मिसाके जमहूरियत, मैं मोहतरमा बेनज़ीर शहीद साहिबा को खराज तहसीन पेश करता हूँ। मैं मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने मिसाके जमहूरियत किया। जमहूरी रवायात पनप रही थीं, एक वोट आउट होता था, एक वोट इन होता था। सिर्फ कि हमजा शहबाज शरीफ ऑपोजिशन लीडर है, इसको पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन नहीं बनाना। हमने यहाँ पर करप्शन का बाजार गर्म करना है, पैसे लेने हैं तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को चौपट कर दो। स्पीकर साहब, मैं बड़ा गुनाहगार आदमी हूँ। इस ऐवान में अपने साथियों के तवस्सुत से आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि जो ओहदा 4 साल जो हमारा हक था उसे हमें महरूम रखा, हम कमेटियों में नहीं गए। मैं आज ऐलान करता हूं, अपने आप को इस ऐवान के सामने पेश करता हूं, हम ऑपोजिशन में से पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बनाएंगे इंशाअल्लाह। यहां पर जो स्टैंडिंग कमेटीज हैं उनको हम और मजबूत करेंगे ताकि स्टैंडिंग कमेटीज
ज़्यादा अपना काम जो है वो आसानी से कर सकें, इस ऐवान के तकद्दुस को बहाल करेंगे। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि 15 दिन से जिस बहरानी और हैजानी कैफियत में जहाँ पर सूबे की आवाम मुब्तला थी, आप भी मुब्तला थे, कभी आपसे अख्तियारात ले लिए जाते थे, कभी आपके ऊपर इस ऐवान के गेट बंद कर दिए जाते थे। तो स्पीकर साहब, हमजा शहबाज और उसकी सारी पार्लिमानी जमात जो है, हम इस बात का यकीन दिलाते हैं, आपसे वादा करते हैं कि हम इस ऐवान की तकद्दुस के लिए, इसके कानून और आइन के लिए हम पूरा पहरा देंगे और इसको मजबूत करेंगे इंशाअल्लाह ताला। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ और मैं आज पाकिस्तानी अवाम को कहना चाहता हूँ कि मैं बड़ा आजिज़ इंसान हूँ। अल्लाह की मेहरबानी है, मेरे कायद नवाज़ शरीफ का मुझ पर एतमाद है और उसके बाद मेरे माँ बाप की दुआएं हैं। अल्लाह ताला जिनके माँ बाप इस दुनिया में नहीं हैं उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। और पाकिस्तानी कौम को कहना चाहता हूँ कि आज मैं जो कुछ भी हूँ अल्लाह की मेहरबानी के बाद अपनी माँ बाप की दुआओं से हूँ। आज रमज़ान का महीना है, जिसके भी जहाँ जहाँ भी माँ बाप कोई रूठे हुए हैं उनको मना लो। मैं लिख के देता हूँ, अल्लाह भी राज़ी होगा, दुनिया की कामयाबी में मिलेंगी और आखिरत की कामयाबी में मिलेंगी इंशाअल्लाह ताला। तो मैं स्पीकर साहब आपको दोबारा अपनी मोअज़्ज़िज़ अरकान की तरफ से, अपनी तरफ से, इस सूबे की तरफ से खैराज तहसीन पेश करता हूँ और इंशाअल्लाह सुबह से हम अपने तरजीहात के मुताबिक अपने कामों पे निकलेंगे और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी रहनुमाई करे और हम इस सूबे की बेहतरीन खिदमत कर सकें। बेहतरीन खिदमत ही बेहतरीन सियासत है। स्पीकर साहब, पाकिस्तान पाइंदाबाद। नौ मुंतखब वज़ीर आला हमजा शहबाज पंजाब असेंबली में खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि डिप्टी स्पीकर ने बहादुरी से अपना फर्ज अदा किया। आपको खिराज तहसीन पेश करता हूँ। डिप्टी स्पीकर पर हमला असल में ऐवान पर हमला है। उन्होंने कहा कि मुअज़्ज़िज़ मेंबरान पर ऐवान के दरवाजे बंद किए गए। पार्टी क़यादत, इत्तेहादियों और तमाम सियासी वर्कर्स का आज के दिन शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने कहा कि नाअहल शख्स को पंजाब पर मुसल्लत करके आवाम के साथ खिलवाड़ किया गया। महंगाई की वजह से लोगों के घरों में फाके हैं। हमजा शहबाज ने ऐवान में खिताब करते हुए कहा कि अपने कायद मोहम्मद नवाज शरीफ और सदर मुस्लिम लीग नून मोहम्मद शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझ पर एतमाद किया। इमरान नियाजी को फौरन फंडिंग का हिसाब देना पड़ेगा। कायद ऐवान हमजा शहबाज पंजाब असेंबली में खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पिछले 2 हफ्ते से अवाम हिजानी कैफियत में मुब्तला थे। नाअहल शख्स को पंजाब पर मुसल्लत करके अवाम के साथ खिलवाड़ किया गया। पीटीवी न्यूज से फिल वक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ।